54-year-old obese lady with history of diabetes mellitus comes with acute painful knee swelling. On examination, there is restriction movement and X-ray showing periarticular erosion. तो क्या होगा डायग्नोसिस? ओके, आंसर वहीं आ गए। तो आपको इनमें से आंसर चूज करना है। ये तो गलत लिखा है, ये तो गलत लिखा है इसमें। तो यू हैव टू चूज द आंसर। तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन है उसमें से चूज करना है। देखो ऑप्शन क्या क्या। व्हाट इज द आंसर फॉर केस 1? बताओ क्या होगा। ओके, ऑप्शन में क्या क्या है? लेट्स सी द ऑप्शन। क्या ये पेशेंट को, इज इट एसएलई? नो। इज इट सूडो गाउट है ये? ओबीस में क्या कॉमन होता है? इन ओबीस पेशेंट व्हाट इज कॉमन? ऑस्टियोआर्थराइटिस कुड बी द आंसर। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस विद एक्यूट पेनफुल नी स्वेलिंग। On examination, there is restriction movement and X-ray showing periarticular erosion. Erosive osteoarthritis, is it erosive? No, it is non-erosive. So erosive arthritis क्या होती है? Rheumatoid arthritis. तो answer is rheumatoid arthritis. Now understand, osteoarthritis में क्या होता है एक्सरे में? Loss of joint space. Loss of joint space, osteophytes, these are seen in osteoarthritis. 32-year-old lady with joint pain, oral ulcers, skin rash. So ये क्या है? SLE. And you can see photosensitivity. 46-year-old man with 10-year low back pain. Then you can see bilateral sacroiliac involvement. So this is ankylosing spondylitis. तो आपको आंसर चूज करने थे। Is it clear? So only mistake which student can make is, ध्यान रखना, periarticular erosion कहाँ होगा? Rheumatoid arthritis. Loss of joint space, osteophytes, these are seen in osteoarthritis. These are seen in osteoarthritis. Again, ECG, बताओ क्या होगा? First, tell me the diagnosis. पहले ECG में डायग्नोस बनाओ, क्या होगा डायग्नोसिस ऑफ दिस ECG? So what is the diagnosis? You can see QRS कैसा है? Narrow QRS और RRS regular irregular. Regular RR. So diagnosis will be PSVT. Now let's see the option. Pulse rate is 156. Means patient is having palpitation, tachycardia हो रहा है. BP is 70/40. In PSVT, what I told you, मैंने क्या बताया था? अगर पेशेंट स्टेबल है तो क्या करोगे? Carotid massage. If it is not responding with massage, then what we do? Then we give IV adenosine. So understand this thing. So in PSVT, if patient is stable or if patient is unstable, तो अनस्टेबल में सीधे क्या करेंगे? Cardioversion, synchronized cardioversion. In stable patient, first what you will do? Carotid massage. And what we call this? We call this vagal maneuver. And if this fail, then what we give? IV adenosine. और अगर IV adenosine भी फेल हो गया तो क्या करोगे? कार्डियोवर्शन। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? BP 70/40. पेशेंट को स्टेबल बोलेंगे अनस्टेबल? Unstable. Emergency crew have tried vagal maneuver and adenosine to which rhythm is refractory. So what is next step? Next step will be cardioversion. So answer will be D. Simple. तो ये आपको याद रखना, they ask you question on PSVT. In PSVT, they ask you initial treatment of choice or initial management of choice will in stable patient will be
carotid massage. Drug of choice will be adenosine. And in unstable patient, treatment of choice will be cardioversion. Treatment of choice in patient where rhythm is refractory to adenosine, क्या दोगे? Cardioversion. Clear? अगर एडनोसिन से ठीक नहीं हुआ तो क्या करोगे? कार्डियोवर्शन. So answer is cardioversion. Okay. Try to answer this. Hypercalcemia due to vitamin D toxicity can be treated with. किससे ठीक करोगे हाइपरकैल्सीमिया को? पेशेंट का कैल्शियम ज्यादा है, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी है. हाउ यू विल ट्रीट दिस? सिंपल. अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, दे आर आस्किंग यू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया. सो हाइपरकैल्सीमिया में हम क्या क्या देते हैं? जस्ट टेल मी व्हाट आई टोल्ड यू इन हाइपरकैल्सीमिया. तो वी गिव आईवी फ्लूइड मींस एनएस दोगे. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? एनएस के बाद यू कैन यूज लूप डायरेटिक्स. लूप डायरेटिक मींस furosemide, torsemide. So we can use because they will remove the calcium. What else? Bisphosphonates like pamendronate, zolendronate, ibandronate, bisphosphonates. और क्या देते हैं बिस्फॉस्फोनेट के साथ में? कैल्सिटोनिन. Bisphosphonates will prevent bone lysis and calcitonin will send calcium back into bones. अगर hypercalcemia हो रहा है due to some autoimmune disease or due to some malignancy, then what we give? We give steroid. We give steroid. Like sarcoidosis में क्या देते हैं? Steroid. Clear? अब बताओ क्या आंसर होगा? तो ये तो सब देते ही नहीं है ना हाइपरकैल्सियम में. सो वी हैव ओनली वन स्टेरॉइड, दैट इज डेक्सामेथासोन. सो अगेन क्वेश्चन वाज नॉट anything, it was nothing about management of hypercalcemia. So what we give? Steroid. 54 incorrect regarding obtaining ABG sample. Incorrect regarding obtaining ABG sample. Normal pH can't rule out acid base or true or false. देखो हमने पढ़ा था compensation. When body is doing fully compensated, so fully compensated में pH कैसा होता है? Normal. So this is a true statement, right? So it is not the answer. Choose another site if Allen test is abnormal. So normally what we do, radial artery. अगर Allen test abnormal आ रहा तो क्या करोगे? Brachial choose कर लो और femoral. It's also a true statement. तो ये भी आंसर नहीं होगा. Add 0.5 ml heparin to the syringe is recommended. हेपारिन डालते हैं डालते हैं. रेडियल आर्टरी इज प्रेफर्ड. अब देखो आंसर सी और डी में से एक है. रेडियल आर्टरी इज प्रेफर्ड साइड, ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू है. तो हेपारिन डालते नहीं है, हेपारिन से फ्लश करते हैं. याद आ रहा है? Heparinized syringe means we will take heparin and flush it. So we don't add, we flush it with heparin. Flush it with heparin. So this is a false statement. So answer will be this one. Am I clear? So याद रखना, heparin is not added, we flush it with heparin. Okay, renopulmonary syndrome means कहाँ कहाँ पर किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. वेर यू विल सी किडनी एंड लंग्स इन्वॉल्वमेंट. गुड पास्चर, गुर्दा फेफड़े. G4 गुर्दा. गुर्दा मीन्स किडनी. P4 फेफड़े. फेफड़े मीन्स लंग्स. तो यहाँ पर तो होता है, राइट? तो दिस इज द आंसर. लेप्टोस्पायरा. लेप्टोस्पायरा क्या होता है? इट मेनली अफेक्ट लंग्स. लेटर ऑन यू कैन सी एक्यूट किडनी डैमेज. तो यहाँ भी होता है. हंटा वायरस. हंटा वायरस में पेशेंट को क्या होता है? क्रेटिनिन इज इंक्रीज्ड, एक्यूट किडनी इंजरी कैन अकर एंड पेशेंट कैन डेवलप ARDS. ARDS मीन्स तो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. वैगनर्स गैलोमेटोसिस. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर एंड किडनी. सो आंसर विल बी ऑल. ऑप्शन इन्होंने दिए नहीं है, थोड़े पैटर्न अपने हिसाब से चेंज कर दिया है. मेरे पास पेपर दूसरा है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें.
टाइगरॉइड अपीयरेंस ऑफ व्हाइट मैटर ऑन एमआरआई. रेडियोलॉजी क्वेश्चन तुक्का मारो, नो नेगेटिव मार्किंग, छूटना नहीं है. Okay, now see, aceruloplasminemia means no ceruloplasmin. No ceruloplasmin means nobody will carry copper. कॉपर की डेफिशिएंसी होगी, तो मेनली इट विल बी सिस्टेमिक डिसीज. तो ब्रेन में तो उतने मैनिफेस्टेशन होंगे ही नहीं. न्यूरोफेरेटिनोपैथी, अगेन डिसीज दैट इन्वॉल्व फेरेटिन. So ferritin can produce toxicity in your brain. So there will be iron overload in your brain. Iron is red in color. टाइगर में रेड कलर तो होगा नहीं, इट विल बी ब्राउनिश डिस्कलरेशन. अब तुक्का मारो, ए और बी. तो आंसर इज पेलिजाइस मर्स बेचर डिसीज. Here you will see tigeroid appearance on white matter. Okay, following is true about bundle of Kent. Yes. अभी बताऊंगा, इसको खत्म कर लें उसके बाद बताऊंगा. इसको खत्म कर लेते हैं उसके बाद बताता हूँ. ओके, WPW सिंड्रोम बताओ क्या होगा. इट इज abnormal pathway between two atria, true or false. क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स. ट्रू दे आर आस्किंग. So it is not between two atria, it is between atria and ventricle. So B is looking to be correct, right? This is called bundle of Kent and it will cause Wolff-Parkinson-White syndrome. It is slower than AV nodal pathway. Aberrant conduction है, AV nodal delay नहीं होगा तो ये कैसा होगा, ये फास्ट होगा. तो जस्ट रिमेंबर, WPW से आपसे बार बार दो क्वेश्चन पूछते हैं. फर्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, देन दे आस्क यू IV DOC and what is oral DOC. Fill in the blank. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा. इट इज कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. जो एक्स्ट्रा पाथवे उसको आपको बर्न करना है. ड्रग ऑफ चॉइस IV प्रोकेनामाइड. प्रोकेनामाइड. एंड ड्रग ऑफ चॉइस ओरल फ्लेकेनाइड. एंड डोंट फॉरगेट ओल्ड MCQ. In WPW syndrome you will see a classical wave. This wave is called, क्या होती है डेल्टा वेव. QRS कैसा दिखेगा आपको. This is P wave. Normal QRS is like this. You will see P wave. Then QRS will be like this, a slurry upstroke. P QRST. So you can see this slurry upstroke in initial portion of QRS. QRS कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ. It is called delta wave. So slurry upstroke in initial portion of QRS called delta waves. Okay, genetics question. Achondroplasia is having which type of inheritance? Achondroplasia किसी ने विकराल गबराल देखा है, उसमें जो गबरू होता है छोटा सा गबराल. Normal truncalite, short acrolite, right? That is called achondroplasia. Achondroplasia. तो achondroplasia patient, understand this, इनकी शक्ल से उम्र वैसी दिखेगी. तो this is like, his name is Adil, he is 32-year-old person. तो by look, face, he is having a normal face, दाढ़ी मूछें हैं, but you can see patient के हाथ पैर बहुत छोटे छोटे, and patient will have recurrent fracture. So achondroplasia mode of inheritance will be autosomal dominant. Okay, now coming to this one, very important. बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं secondary headache पे. A 70-year-old man comes to you with severe headache. In which condition further investigation is needed? Okay, so I'll ask you, suppose आपके पास एक पेशेंट आया. अगेन मेडिसिन में रटने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना है. सपोज मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको बहुत तेज दर्द हो रहा है. ही इज टेलिंग यू दिस इज वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ. So I could understand it could be a bleeding, it could be SAH. तो SAH में आगे क्या कराओगे, एक CT कराओगे, नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन.
एनसीसीटी ब्रेन। क्लियर। हेडेक विथ डिप्लोपिया मीन्स हेडेक के साथ डबल दिख रहा है, डबल विजन। इट मीन्स there could be some problem in eyes. It could be some ophthalmological problem, maybe like some optic neuropathy, right? There can be like patient is having some optic nerve problem. There's a tumor that is affecting optic nerve, or it could be like a pituitary tumor. Means again, there's some problem with the eyes, or I can say problem with the optic nerve. तो आगे इन्वेस्टिगेशन कराओगे, वी शुड डेफिनेटली फर्स्ट सेंड द पेशेंट टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसका एक फंडस होगा, फंडस के बाद सीटी होगा। हेडेक नॉट रिलीव्ड इन 4 आवर्स, इसमें आगे कुछ टेस्ट कराओगे? 4 घंटे सर में दर्द हो रहा है। माइग्रेन की ड्यूरेशन तो 4 to 72 आवर्स होती है। माइग्रेन इज मिनिमम 4 आवर, तो इसमें आगे कुछ कराओगे? नो। डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन इज क्लिनिकल। पहली बार सिवियर हेडेक हो रहा है, क्या हो सकता है रीजन? फर्स्ट सिवियर हेडेक। टेम्पोराइटिस में फर्स्ट टाइम विल नॉट बी फर्स्ट टाइम, वो भी रिकरेंट होगा। पहली बार एकदम से, सपोज एकदम से तुम्हें सर में दर्द हुआ, क्या हो सकता है? इट कुड बी स्ट्रोक, इट कुड बी लाइक सडन rise in ICP, patient can have papilledema। तो अगेन इसका आपको फंडस कराना पड़ेगा, राइट? इवन सिवियर हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कैन कॉज दिस। तो इसको आगे टेस्टिंग कराओगे? यस। लेकिन माइग्रेन में टेस्टिंग आगे नहीं कराते। तो दे आर आस्किंग यू कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। सो इन्वेस्टिगेशन नीडेड कहाँ कहाँ चाहिए? इन ए यू नीड इन्वेस्टिगेशन, in B you need investigation, and here you need investigation. So answer will be A, B, D, means 1, 2, 4. Clear? Am I clear? Just remember a line रटना नहीं है। Write down any headache. Write down any headache affecting brain or eyes. Any headache affecting or involving brain or eyes, and not a primary one. Any headache affecting brain or eyes and not a primary one will need further investigation. समझ आया? प्राइमरी हेडेक नहीं होना चाहिए, ब्रेन और आई में कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रहा है, सो यू शुड डेफिनेटली डू अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मीन्स आप सीटी कराओगे, टेम्पोरल अराइटिस है तो बायोप्सी करोगे। ओके, नेजर प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेजर प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स? याद आ रहा है? एस बी आई, S4 SGOT, B4 बिलिरुबिन, एंड I4 INR और PT। SGOT को और क्या बोलते हैं? ALT और AST? ALT और AST? AST. So AST is a component, yes. PT is a component, yes. Bilirubin is a component, yes. Answer is ALT. Clear? अब मुझे बताओ क्यों करते हैं नेजर प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स? Why we do nasal prognostic index? It is to decide treatment in Wilson disease patient. If score value is less than 7, then we will give zinc D-penicillamine trientine, means medical management. Score value is more than 9, it's a candidate of liver transplant. So Naser prognostic index is to decide the prognosis of Wilson disease and to start which treatment, means medical management or surgical liver transplant. Clear? Okay, बताओ। Neutrophils 500. What is the next best step? So understand, if you see neutrophils are more than 250 cells per microliter and total WBCs are more than 500 in ascitic fluid। अगर असाइटिक फ्लूइड के अंदर आप देखोगे न्यूट्रोफिल्स 250 से ज्यादा है एंड डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी 500 से ज्यादा है,
It's a patient of SBP. SBP means spontaneous bacterial peritonitis. This question came in all the exams, NEET, PG, FMG, NICT. So how you will manage this? The best antibiotic in this case will be IV cefotaxime. IV cefotaxime. Alternative will be IV ceftriaxone. अब देखो यहाँ तक तो पूछ लिया है. Now what is expected? So you will give ceftriaxone or ceftriaxone or cefotaxime for 5 to 7 days to patient. अब जब इसकी छुट्टी करोगे, when you discharge the patient, then you will give a tablet of norfloxacin. This is expected question. या तो आपके एग्जाम में आएगा या फिर नीट पीजी में आएगा अभी. You will give a tablet of norfloxacin for 21 days. And this is given on discharge. And why we are giving this? For prophylaxis. इसको ऐसा दोबारा ना हो. So see once again, in treatment what we give? Ceftriaxone or cefotaxime. For prophylaxis what we give? Norfloxacin. It's a patient of SBP. तभी आंसर क्या होगा? लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस को हम बोलते हैं एसाइटिक टैब. एसाइटिक टैब कब करते हैं? व्हेन पेशेंट इज हैविंग रिफ्रैक्टरी एसाइटिस, मींस डायूरेटिक से पेट का पानी कम नहीं हो रहा है. एल्बुमिन कब दोगे? जब एल्बुमिन कम है. स्पाइनोलैक्टोन इज द इनिशियल डायूरेटिक दैट वी स्टार्ट. बेस्ट टेस्ट टू कंफर्म डायग्नोस थैलेसीमिया ट्रेट बताओ. तो बेस्ट टेस्ट फॉर थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इट इज HPLC. HPLC means high performance liquid chromatography. But when HPLC is not given in the option, what we do? Hemoglobin electrophoresis. Now, what is the meaning of electrophoresis? Electrophoresis means we will check कि patient की body में कितना HbA है, how much is the HbA2, and how much is the hemoglobin F. Is it clear? So see, peripheral smear. Smear में क्या मिलेगा? You will see this type of cell called teardrop cell, and this is called target cell. But remember, smear is never confirmatory. Smear is never confirmatory. Nestroff test इसको यूज करते हैं स्क्रीनिंग में. It is naked eye, single tube, RBC, osmotic facilities that's used for screening. Reticulocytosis means रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ रहा है. तो ये तो किसी भी हीमोलाइटिक एनीमिया में बढ़ेगा. तो आंसर विल बी elevated HbA2. Am I clear? Elevated HbA2. Done? Okay, so how you will diagnose this PCKD? So patient age is 15 to 30, 30 to 60, more than 60. तो अगर पेशेंट की एज 15 से 30 साल है, then what we need? We need two cyst. या तो एक किडनी में दोनों, means either unilateral और bilateral. अगर 30 से 60 की एज है, then what we need? Two cyst in each kidney. And more than 60, four cyst in each kidney. So this is how we diagnose PCKD. See once again, two cyst, either unilateral or bilateral, two in each, four in each. इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको? You need a positive family history. Along with this, what you need? A positive family history. Means patient should have family history of PCKD. घर में किसी को, दादा को, पापा को या दादी को, नानी को, किसी को PCKD होना चाहिए. So now look at the age. Age is 45. So what will be the answer? Two cysts in each kidney. Okay, this was last year NEET PG question. Which stone are seen due to laxative abuse? बताओ. यूरिक एसिड स्टोन बनता है लैक्सेटिव से? नो. स्ट्रोबाइट स्टोन? नो. इट इज अमोनियम यूरेट स्टोन. Ammonium urate stone, these are produced due to laxative overuse.
Okay, now let's see. Type 2 diabetes patient who was recently started on treatment complaint of increased production of ketone bodies. आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और क्या बन रहे हैं उसकी बॉडी में? केटन बॉडीज. हाउएवर ब्लड ग्लूकोज सीम्स टू बी नॉर्मल. कैन आई कॉल दिस डीके? डीके इसको बोल सकते नहीं बोल सकते? तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको फिर? देन व्हाट डू यू थिंक? क्या आंसर होगा बताओ? क्या आंसर होगा? मेटफॉर्मिन. सबने आंसर मेटफॉर्मिन किया है. क्या आंसर है फिर बताओ? डापाग्लिफ्लोज एंड मेटफॉर्मिन क्या होगा बताओ? बाय मेटफॉर्मिन. तो लैक्टिक एसिडोसिस तो लिखा भी नहीं है. इट इज रिटर्न. कहीं लिखा लैक्टिक एसिडोसिस? कीटोन बॉडीज लिखा हुआ है. क्या ग्लिपिजाइड? ग्लिपिसाइड क्या तो ग्लूकोज कम करेगी? हमने नोट्स में लिखा था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. हम्म, इट इज कॉल्ड यूग्लाइसेमिक. देख लो नोट्स में. कीटो एसिडोसिस कहीं लिखा हुआ है? मैं दिखाऊं? लाओ मैं ढूंढ के दूं. यूग्लाइसेमिक कीटो एसिडोसिस कहाँ लिखा था? ड्रग्स कहाँ लिखे थे तुमने? ये समझ लेते हो हैंड राइटिंग तुम? मैंने किरण बॉडीज मैंने सीमाग्लोटाइड, डीपीपी4 इनहिबिटर, एमाइलिन एंड यहाँ यहाँ देखो. कानाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन प्रिवेंट हार्ट फेलियर, सीकेडी, सीआरएफ, यूटीआई, पॉर्नियर्स गैंग्रीन, बोन फ्रैक्चर. और ये क्या लिखा है? यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस लिखा है. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिखा है. तुमने क्यों नहीं लिखा? तो दिस इज यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस मींस नॉर्मल ग्लूकोज प्लस कीटोन बॉडीज. ये किससे होगा? डापाग्लिफ्लोज. क्लियर? मेटफॉर्मिन से लैक्टिक एसिडोसिस होगी. एक्सोनाटाइड, सेक्सोनाटाइड, these are what? Incretins. ग्लिपिजाइड इज सल्फोनिलूरियस. इससे हाइपोग्लाइसेमिया होगा. नार्प, राइट डाउन फुल फॉर्म. न्यूराइटिस अटैक्सिया रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. नार्प, न्यूराइटिस अटैक्सिया रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, मेलास, mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, stroke. So these are the diseases with mitochondrial disorders. Neuritis, ataxia, retinitis pigmentosa. Labor is LEBER, labor hereditary optic neuropathy. MELAS is mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, stroke. So these are mitochondrial function disorder, mitochondrial disorder. Okay, mitochondrial disorder का फीचर क्या होता है? From mother this will affect all babies, and from father it will affect none. मदर से सबको होगा, पापा से किसी को नहीं होगा. क्लियर? ABCD2 score. Okay, what about A4? कितने से ज्यादा? More than 60. How many point you will give? What is B? BP. कितना point? What is C? C for clinical feature. क्लिनिकल फीचर दो बताए थे मैंने. या तो पेशेंट कैसे आएगा? स्पीच प्रॉब्लम, स्पीच impairment, then we give 1 point. And if patient is having limb weakness, 2 point.
D4 diabetes. So diabetes we give 1 point, and D4 duration. ड्यूरेशन अगर लेस देन 10 मिनट से कितने पॉइंट देंगे? जीरो. इफ इट इज 10 to 59 minutes and more than 60 minutes, याद आ रहा है? अगर ड्यूरेशन पेशेंट को सपोज मीन्स पेशेंट हैविंग आर्म वीकनेस, एक हाथ एक पैर काम नहीं कर रहा है पिछले 5 मिनट से, 5 मिनट बाद ठीक हो गया, देन स्कोर इज जीरो. 15 मिनट से स्कोर विल बी वन. पिछले 2 घंटे, 4 घंटे, 20 घंटे, अप टू 24 hours, देन वी गिव स्कोर ऑफ 2. सो दे आस्क यू ABCD टू स्कोर क्यों करते हैं, बताओ व्हाई वी डू दिस. इट इज टू प्रिडिक्ट future risk of stroke in a patient with TIA. So BP is a component, yes. Age is a component, yes. Diabetes is a component, yes. Previous stroke is not a component. Previous stroke is not a component of ABCD2 score, and this score is used in TIA patient to predict future risk of stroke. To predict future risk of stroke. Okay, moving to next one. This question also came in your exam. ये क्वेश्चन इससे पहले कभी किसी एग्जाम में नहीं आया. अब कभी कभी एग्जाम में यू विल सी सम न्यू थिंग्स, कुछ नया क्वेश्चन दिखता है. तो अब देखो, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द क्राइटेरिया elderly male patient. So which criteria? Question is which criteria we use for dose modification and titration in elderly patient. बूढ़े लोगों में कम डोज देना है, ज्यादा डोज देना है, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है? तो ड्यूक्स क्राइटेरिया किसके लिए होता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसको बोलते हैं साब. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. लाइट्स क्राइटेरिया, it is for pleural effusion. Jones criteria is for, the answer is Beer's criteria. Beer's criteria. Then, okay, now they are asking you this type of feature like how many major or minor criteria. So आपको ढूंढना है, what we call this? We call this Duke's criteria. So understand, in Duke's we have major criteria and we have minor criteria. So understand, Duke's criteria किसके लिए बताया था अभी? So in major criteria, we have two evidence. Either any of the microbiological evidence means culture is positive for typical bacteria. दूसरा क्या होगा? 2D echo finding means radiographic evidence. So Dukes के major criteria में क्या आएगा? Culture positive और echo positive. So what we have in minor criteria? In minor we have total 5 criteria. कौन कौन से होते? So in minor, understand this thing. Fever is a minor criteria. Fever is a minor criteria. Then प्रायर प्रायर प्रिडिस्पोजिंग इवेंट मीन्स पेशेंट का कोई पहले से हिस्ट्री है, लाइक पेशेंट इज एनी, आई कैन से प्रीडिस्पोजिंग इवेंट और प्रीडिस्पोजिंग हिस्ट्री, लाइक पेशेंट इज IV ड्रग अब्यूजर्स, तो पेशेंट इंट्रावीनसली ड्रग लेता है, दैट्स अ माइनर क्राइटेरिया. देन अंडरस्टैंड लाइक देयर आर सम वस्कुलर फीचर्स लाइक रॉथ स्पॉट, Janeway lesion, splinter hemorrhage, Janeway lesion, then we can have splinter hemorrhage. These are all minor. Then there are some immunological phenomena like Osler node, membranoglomenonephritis, MGN, and culture not fitting in major.
culture positive for those bacteria which are not fitting in major. तो ये किसमें हो गया? माइनर में. समझा? तो culture not positive for typical bacteria. So let's see. 20-year-old male present with fever. So fever criteria है. He is an IV drug abuser. Second criteria दो हो गए. One is fever. Two is IV drug abuser. Temperature 38 वो fever ही हो गया. Right? And some spots can be noticed over the fundus. तो ये क्या है? These are hot spots. Then you can see leukocyte count WBC बढ़ा हुआ है. So that is not a criteria. Blood has been sent for culture. How many minor? कितने हो गए? 3. So it is 3. Then now coming to hyperdynamic state. Hyperdynamic state means, understand, whenever like body is having either deficiency, means either there is less blood or heart is pumping fast but without any anatomical defect, उसको बोलते हैं हाइपरडायनामिक स्टेट. कोई डिसीज नहीं है, बट फॉर एग्जांपल पेशेंट में खून की कमी है. अनीमिया इज हाइपरडायनामिक स्टेट. यस. बेरी बेरी मीन्स देयर इज विटामिन B1 deficiency. AV fistula means again problem. Core pulmonale is not hyper. It is nothing. Core pulmonale क्या होता है? It is right heart failure and generally seen after chronic bronchitis. जनरली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बाद मिलता है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन. ये तो शायद रिपीट हो गया. नहीं नहीं, अलग क्वेश्चन. राइनाइटिस है, नॉट सबसाइडिंग विद एंटीहिस्टामाइन. Recurrent hemoptysis and glomerulonephritis, which is not an important differential diagnosis to be considered. अच्छा क्वेश्चन है. So rhinitis है, means you can see upper respiratory tract involvement. Hemoptysis means lower respiratory tract involvement and kidney involvement. तो मैंने बताया था वैगनर्स और गुड पास्चर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अपर से. तो दिस यू विल कंसिडर इन डिफरेंशियल. अब क्या बच गया दोनों में से? एक पैन, बिकॉज पैन में लंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. इज इट क्लियर? So because polyarthritis nodosa, this will spare lung. So this you will not keep under differential diagnosis. Simple. Am I clear? Microscopic polyangiitis में होता है lung का involvement? हो सकता है. Is it clear? Okay, now tell me फटाफट इनके एंटीबॉडी के नाम बता दो. गुड पास्चर में what is the antibody? Wegener's. Microscopic polyangiitis. Polyarthritis nodosa. इसमें immune complex मिलता है. Means it is a type 3 hypersensitivity. Am I clear? Okay, now they're asking what is not true. बताओ. इजी क्वेश्चन है. देखो, ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट में आपको सोचना है, खुद से बात करनी है. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो माइक्रो एल्यूमिनियम कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय रूटीन लैब टेस्ट. रूटीन लैब टेस्ट में नहीं डिटेक्ट, उसके लिए क्या करते हैं? यूरिन मिक्राल टेस्ट. सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नॉर्मल रूटीन टेस्ट में कभी कभी थोड़े थोड़े एल्बुमिन नहीं आते. मैक्रोलूरिया यू कैन सी, बट माइक्रो इज नॉट डिटेक्टेड. लेस देन 30, sorry, less than 30 to 299 is called micro. True or false? Less than 30 is called micro. 30 to 299 is called moderate, and more than 300 is called macro. So this is a false statement. तो माइक्रो कब बोलते हैं? जब 30 से कम होता है. तो स्टेटमेंट बना दिया. 30 रेंज दे दी ना आपको, रेंज. माइक्रोनिया इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन डायबिटीज. यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. It's an early marker of diabetic nephropathy. It's also a true statement. So remember,
When we called micronuria, when it is less than 30, 30 से 299 को बोलते हैं मॉडरेट, एंड मोर देन 300 व्हाट वी कॉल्ड मैक्रो और सिवियर. क्लियर? इजी क्वेश्चन. बताओ. 27 ईयर ओल्ड मेल, यंग मेल, बैक पेन है, बैक पेन which is more in the morning and decrease in the evening. Now see, अगर कोई ऐसी हिंट दी है जहां पेन सुबह ज्यादा है, it means body is having some stiffness going on. Means body is having some morning stiffness and this will improve with activity. Then always think of rheumatological condition. It is not an orthopedic complaint, it is rheumatological condition. ऑर्थोपेडिक कंप्लेंट में कभी भी पेन हो सकता है. पेशेंट गिर गया, सुबह ज्यादा पेन होगा, दोपहर में भी होगा, जब गिरा तब ज्यादा होगा. In rheumatological condition, you will see as soon as you will do some activity, pain will improve. Then relieved by bathing in warm water. So understand this thing. Young male there, so it is a patient of ankylosing spondylitis. Clear? Ankylosing spondylitis के पेशेंट के अंदर लीवर का साइज बढ़ता है? नहीं बढ़ता. चेस्ट एक्सपेंशन कम होता है? Yes. Chest expansion is decreased. So we will do additional tests like you can see there is decreased in chest expansion. Then we will do a bend over test. This bend over test is called Schober's test. Interphalangeal joint swelling नहीं होती, मैरो में फाइब्रोसिस नहीं होती. पेशेंट को क्या होता है? सैक्रोइलियाइटिस. हाउ यू विल कंफर्म डायग्नोस कैसे करोगे? यू विल डू एन एमआरआई स्पाइन. इसमें क्या मिलेगा? बाम्बू स्पाइन डैगर साइन. स्ट्रेटनिंग ऑफ वर्टिब्रा कॉल्ड बम्बू स्पाइन, और एक वाइट लाइन दिखेगी दैट्स कॉल्ड डैगर साइन. And remember, this is classically associated with HLA B27. So these are all the MCQ that they ask on ankylosing spondylitis. Most specific sign of metabolic encephalopathy. Apraxia is seen whenever there is damage to parietal lobe. Anosmia. Anosmia, you can see it is one of the earliest symptoms of Parkinson. It can see whenever you are having any problem in your olfactory nerve pathway. Abulia, you can see in a patient who is having frontal lobe damage. एस्टरेक्सिस का मतलब होता है फ्लैपिंग ट्रेमर. तो हिपैटिक और यूरेमिक एंसेफेलोपैथी के पेशेंट के अंदर क्या होता है? फ्लैपिंग ट्रेमर मींस व्हेन यू फ्लिप द पेशेंट आर्म, अगर आपको पाम को ऐसे करोगे पीछे, देन ही विल हैव ट्रेमर्स. राइट? नॉर्मली दे डोंट हैव ट्रेमर्स, बट व्हेन यू डू दिस इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, देन दे विल हैव ट्रेमर्स. इसको बोलते हैं एस्टरेक्सिस. क्लियर? ओके, क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था, व्हाट इज अर्लीस्ट साइन? राइट डाउन अर्लीस्ट साइन ऑफ मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी. क्या होगा अर्लीस्ट साइन? अर्लीस्ट साइन ऑफ मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी. Earliest sign will be altered sleep cycle. तुम लोग सोच रहे हो वो तो हमारी ऑलरेडी अल्टर्ड है. मीन्स पेशेंट दिन में सोएगा, रात को जगेगा. Altered sleep cycle, this will be one of the earliest sign of hepatic or uremic encephalopathy. अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था what you will find in EEG, triphasic waves. Okay, try to answer next one. 65-year-old with history of sweating and chest pain for last 24 hours. 24 घंटे से पसीने आ रहे, right? And chest pain, and ECG is given. What you will not give in managing this patient? So let's see ECG में क्या दिख रहा है. What you can see in ECG? What you can see in lead V2, V3, and in V4.
व्हाट यू कैन सी एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, राइट? तो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? क्या हो सकता है? इट कुड बी आइदर अनस्टेबल एंजाइना. Angina can also have a ST elevation, right? Or it could be STEMI. STEMI means ST elevation MI. So अगर अनस्टेबल एंजाइना है तो हमको अब क्वेश्चन में दिया नहीं कि क्या है, वी डोंट नो. हाउ यू विल कंफर्म दिस? मार्कर्स. नाउ टेल मी, लेट्स सी द ऑप्शन. एस्पिरिन किस में देंगे? दोनों में देंगे. स्टैटिन किस में देंगे? दोनों में देंगे. मॉर्फिन किस में देंगे? दोनों में देंगे. अगर एमआई होगा तो थ्रोम्बोलाइज करोगे. अनस्टेबल एंजाइना होगा थ्रोम्बोलाइज नहीं करेंगे. लेकिन थ्रोम्बोलाइज से बेटर क्या होता है? पीसीआई. Am I clear? So why this is, tell me why it is unstable angina and not a STEMI? Duration is not significant. Why we can say? बताओ. देखो एक तो first is you can see all other part of ECG seems to be normal. Just by ECG you will not make the answer. अगर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ST elevation. If it is MI, then you will also see reciprocal change. Reciprocal change means lead facing opposite wall will have opposite change. मीन्स अगर यहाँ पर एस टी एलिवेशन है तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? एस टी डिप्रेशन. तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा. इज क्लियर? सो ईसीजी में व्हाट इज कंफर्मेटरी फॉर एमआई? एस टी एलिवेशन इन लीड फेसिंग द वॉल एंड एस टी डिप्रेशन इन लीड अपोजिट ऑफ द वॉल. फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटीरियर वॉल में एस टी एलिवेशन आ रहा है तो पोस्टीरियर वॉल में क्या आएगा? तो यहाँ पर बाकी सब तो नॉर्मल है. तो दैट्स वाई इट्स मोर चांस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना. सेकेंड इज पेशेंट को स्वेटिंग है, चेस्ट पेन है फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स. सो अगर एमआई का क्वेश्चन ऐसे फ्रेम बनेगा ही नहीं. अब तक तो इसकी क्या हो जाती? पीसीआई. वी कुड हैव डन पीसीआई. So that's why it is what you will not do here. It is unstable angina, so you will not give thrombolytic. Okay, what you can see. Okay, let's see the option. You can see there is swinging of scapula and you can see there is wasting of muscle. यहाँ पर fat muscle ज़्यादा है, कहीं पर कम है. Irregular distribution of. Then you can see neck muscle is also having same problem. So let's see one by one. Latissimus dorsi involvement is not, वो कैसी होगी? Unilateral. Long thoracic nerve will be also unilateral. Klippel fail syndrome will have changes, but they will not involve face and neck. So it is called facioscapulohumeral dystrophy. Facioscapulohumeral means face, scapula के पास और humerus तीनों जगह changes आ रहे हैं. ओके, ये इजी क्वेश्चन है. आरबीसी ट्रांसफ्यूजन में सपोज मैं ब्लड बैंक से ब्लड लेकर आया. आई नीड टू गिव दिस ब्लड टू हिम. So what I will do, this blood is chilled blood. So first I will keep this blood near to patient body. तो बॉडी हीट से क्या हो जाएगा? वो वार्म हो जाएगा. अब कितनी देर लगेगी उसको बॉडी वार्मिंग करने में? 10-15 मिनट्स. एंड व्हेन यू टेक द ब्लड आउट ऑफ द फ्रीजर यू शुड फिनिश दिस इन 4 आवर्स. 24 घंटे वाले रूल आउट होगा. समझ आया? अब सपोज तुम ब्लड ले आए एंड आफ्टर 24 आवर्स यू आर यूजिंग दैट ब्लड इज यूजलेस नाउ. अब तुक्का मारो क्या होगा? 16 to 18 goes. Am I clear? तो एटलीस्ट 2 यू हैव रूल्ड आउट. दो तो लॉजिक से रूल आउट हो रहे हैं. अगर दो रूल आउट हो रहे हैं तो पास हो रहे हो. लॉजिक देखो, अब लॉजिक कैसे आएगा? हाउ यू गेट दिस लॉजिक? व्हेन यू आर अवेक एंड फ्रेश इन एग्जाम. व्हेन यू आर अवेक एंड फ्रेश इन एग्जाम. मैंने सारी जिंदगी अपने पढ़ाई नहीं करी. ट्रस्ट में तुम्हें लगता होगा मैं बहुत पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता बहुत. मैंने रूल आउट बहुत किया है. एलिमिनेट, आई हैव एलिमिनेटेड लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने एलिमिनेट करते करते डीएम निकाल दिया कि ये दो तो आंसर नहीं होंगे, तीसरा भी नहीं होगा. बिकॉज पेपर से एक दिन पहले व्हाट आई डू, मैं 8 बजे सो जाता हूँ.
ज्यादा खा लेता हूँ उस दिन। 6 बजे पुशअप मार लेता हूँ, थक लेता हूँ, बॉडी को थका लेता हूँ। आई ईट अ लॉट, इससे 8-9 बजे तक नींद आ जाए। ना अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हेन यू आर, बिकॉज एक बार मैंने पेपर दिया था बिना सो के। पेपर में ब्लैक आउट होते हो आप, यू आर नॉट फ्रेश। तो वंस यू आर फ्रेश, देखो पेपर में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, हर साल आते हैं। तो देर विल बी 50 to 100 न्यू क्वेश्चंस, बट जैसे बीएस क्राइटेरिया आ गया, बट ऑप्शंस कुछ पुराने, सो यू कैन एलिमिनेट दोस, एंड दोस थिंग्स यू कैन डू ओनली व्हेन यू आर फ्रेश। तो टेंशन लेने से किसी का कुछ नहीं होता। तो प्रॉब्लम इज, वी हैव थ्री थिंग्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। So this is your present. प्रॉब्लम कहाँ आती है? वी थिंक अबाउट पास्ट, वी थिंक अबाउट फ्यूचर। इन दोनों के चक्कर में यू आर रूइनिंग योर प्रेजेंट। पहले मेरे साथ ही क्यों हुआ, ब्रेकअप हो गया, बंदी छोड़ गई, बंदा छोड़ गया, पास्ट में जो हुआ उसको भूलो। आगे क्या हुआ उसकी टेंशन है। अभी क्या है? प्रेजेंट। अब सपोज करो, वाई टू टेक सो, सपोज पेपर निकाल लिया तुमने, अगले दिन मर गए, फिर क्या क्या फायदा था पेपर निकालने का? तो, स्ट्रेस लेने से क्या हो जाएगा? नथिंग विल हैपन, एंड यू आर टेकिंग अननेसेसरी स्ट्रेस, बिना बात की टेंशन है। अगर पेपर नहीं निकला तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6 महीने बाद फिर आ रहा है। तो मेक इट बिल्कुल लाइट सोचोगे, तभी पेपर निकलेगा। इफ यू थिंक ओवर स्ट्रेस, नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, रात को सो नहीं रहे हो, सिगरेट फूके जा रहे हो, कॉफी पिए जा रहे हो, चाय पिए जा रहे हो, टोटल अल्कोहलॉइड एडिक्ट। कुछ लोग तो रेड बुल पी रहे हैं पेपर में, वहां दौड़ना थोड़ी है। रेड बुल से सीएनएस थोड़ी स्टिमुलेट होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ। कुछ नहीं होगा। जिन किसी का पेपर नहीं निकलता वो भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, और एक ना एक दिन सबका निकलेगा। प्रॉब्लम इज, पेपर निकल जाएगा पता है, बट अननेसेसरी स्ट्रेस लोगे, यू आर रूइनिंग द प्रेजेंट। आई एम नॉट टेलिंग कि अब बिल्कुल चिल हो जाओ, कि पढ़ना ही बंद कर दो। 8-10 घंटे जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, बट फॉरगेट टेकिंग स्ट्रेस अबाउट व्हाट हैपेंड इन पास, कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, उसने पढ़ाई करी थी। जो वहां पढ़ा नहीं पढ़ा, दैट डज नॉट मैटर। आगे क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? पेपर निकाल के क्या करोगे तुम? पेपर निकालने के बाद क्या होगा? क्या करोगे पेपर निकालने के बाद? शादी तो वो लड़की बिना पेपर निकाले भी हो जाएगी उसकी। पेपर निकाल के क्या करोगे? नौकरी, इंटर्नशिप नहीं करोगे पहले? इंटर्नशिप के बाद जॉब करोगे? जॉब नहीं करनी, पीजी देना है पहले। पहले पीजी करोगे, फिर फिर जॉब करोगे। तो जॉब करने क्या होगा? बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तुम्हें लग रहा है बहुत सारा आ जाएगा एक साथ में? जॉब विल नॉट मेक यू रिच। जॉब से सिर्फ आपके खर्चे पूरे होते हैं। इज क्लियर? तो अगर एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है पेपर निकाल के क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर आपका पेपर जी निकला हाँ। नहीं निकला, योर पेरेंट्स विल लव यू द सेम वे दैट दे आर डूइंग राइट नाउ। दे मे स्कोल्ड बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि अगर आपने 5-6 साल पढ़ाई करी है, तो आपको किसी बिना किसी कोचिंग के पेपर निकलना चाहिए। अब उनको नहीं पता ना कि 5-6 साल पढ़ाई करी नहीं है। लेकिन अगर तुम सोचो, सेम थिंग, यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड, यू आर स्पेंडिंग 30, 40, 50 lakhs ऑन हिम और हर। उसके बाद तुम भी तो एक्सपेक्ट करोगे इससे 50% तो ले ही आएगा। कितने मार्क्स थे 12th में?
70% जब 12th में लाए थे तभी तो एक फादर ने अपने बेटे को भेजा कि ये जब 12th में 70% ले आया तो एमसीए में 50 भी ले आएगा। तो सपोज करो तुम्हारा बेटा हुआ 25 साल बाद, व्हाट विल बी द फीस ऑफ किर्गिस्तान? मिनिमम 1 करोड़ रुपीस। तुम उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च करे, आज के डेट के 30 लाख, 10 साल 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए आपने खर्च करे, तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे इससे कि पास हो जाए? करोगे? और पास नहीं हुआ तो तुम स्कोल्ड नहीं करोगे? करोगे। अगर वो पास नहीं हुआ, क्या तुम उसको बोलोगे तू मेरी औलाद नहीं है? तो डांटते हैं पेरेंट्स, डांटते हैं पेरेंट्स, डांटते हैं, समझते हैं। अब जैसे मेरी मदर को बिल्कुल पसंद नहीं है मैं कोई साइड बिजनेस करूं। उनका कहना है कि नौकरी करो, जॉब करो। शी डोंट लाइक, इवन शी डोंट लाइक आई एम टीचिंग, कि तुम मत पढ़ाओ, तुम प्रैक्टिस करो, ट्यूशन मत पढ़ाओ। वो ट्यूशन कहती है इनको। तो पॉइंट इज, अब उनको समझाओ तो समझ जाते हैं, बट शी इज मोर हैप्पी व्हेन आई प्रैक्टिस। समझ आई बात? अब व्हेन आई टोल्ड हर आई एम नॉट टीचिंग नॉर्मल पीपल, मैं 12th का ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो एक दिन वो गौतम नगर में मेरे साथ आई, देखा कि 20-25 बच्चे आ गए, कुछ लड़के उसमें से पैर छी रहे हैं, दे आर गिविंग रिस्पेक्ट, देन दे आर सेइंग कि ऑल आर डॉक्टर्स। तो वो समझी, उनको समझाया तो समझी वो कि मैं कुछ गलत चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो उनको लगा कुछ और पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है ये। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, योर पेरेंट्स विल लव यू द सेम वे। अब डांटेंगे तो सही ना, बड़े हैं तो डांटेंगे, लेकिन वो रिश्ता थोड़ी तोड़ देंगे। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग स्ट्रेस। मैंने कई सारे पेपर दिए हैं, जो पेपर स्ट्रेस में दिए हैं वो खराब हुए हैं। और जो कूल काम चिल होके दिए कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो उतना अच्छे गए हैं। तो फालतू की टेंशन लेना बंद कर दो। एग्जाम से पहले बी कॉन्फिडेंट एंड गो टू एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। राइट? चलो आगे बताओ। पॉलिश ग्लास। पॉलिश ग्लास मीन्स ग्लास इंडस्ट्री। tingling sensation on the limbs, constipation, frequent episode pain in abdomen. X-ray shows increased shadows in femur. So what is the diagnosis? पहले तो मुझे डायग्नोस बताओ। Patient will have anemia, anemia होगा। B4, Burtonian line in gums. B4, basophilic stippling. And very very important hint is, patient को क्या होगा? Constipation. D4, drop means wrist drop, foot drop. E4, encephalopathy. Encephalopathy and F4, fertility issue. तो दीज आर ABCDE। और सी से एक और लिख देना, कॉलिकी पेन, पेट में पथरी जैसा दर्द होगा। दिस इज ABCDEF ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब लेड पॉइजनिंग का पेशेंट आपके पास आ रहा है, सो एनी फीचर यू कैन सी, फर्स्ट फीचर इज पेशेंट ग्लास फैक्ट्री में काम कर रहा है। देन यू कैन सी टिंगलिंग सेंसेशन मींस न्यूरोपैथी हो रही है, मींस देयर इज सम टिंगलिंग सेंसेशन ऑन लिम्ब, मींस ड्रॉप हो रहा है, फुट ड्रॉप, कॉमन पैरेलल नर्व डैमेज। कॉन्स्टिपेशन दिया हुआ है एंड पेन इन एब्डोमेन मींस कॉलिकी पेन। तो लेड पॉइजनिंग में मर्करी लेवल देखोगे, नो पॉइंट। आरबीसी कोलिनेस्टेरेज, नो। एंड व्हाट यू विल चेक? ALA, amino levolonic acid level. ALA levels you will see in urine, they are seen whenever person is having lead poisoning. Clear? Okay, next बताओ। Intense घबराहट, palpitation, tremor, sweating, impending doom. Which of the following can be done in emergency room to rule out organic cause of anxiety except? तो आपके पास एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है? पाल्पिटेशन, घबराहट, ट्रेमर, स्वेटिंग, इम्पेंडिंग डूम मीन्स पेशेंट को फीलिंग आ रही है कि वो मर सकता है, सेंस ऑफ डेथ। तो
फॉलोइंग कैन बी डन इन इमरजेंसी टू रूल आउट ऑर्गेनिक कॉज ऑफ एंजाइटी एक्सेप्ट। तो एंजाइटी तो है, कैन वी डू ईसीजी इन इमरजेंसी रूम? यस। मीन्स एनी अरिथमिया कैन कॉज पल्पिटेशन। कैन वी डू ब्लड शुगर लेवल इन इमरजेंसी रूम? यस, एक सिंपल चेक कर लो आप ग्लूकोमीटर से। हाइपोग्लाइसीमिया कैन हैव दिस सिम्टम। इवन डीके, डीके में भी हो सकता है पल्पिटेशन। हीमोग्लोबिन लेवल कैन वी डू? बताओ। हीमोग्लोबिन कैन वी चेक? बताओ। हीमोग्लोबिन को आप इमरजेंसी में चेक कर सकते हो? नो। T3 T4 can we check in emergency? No. So these both are not tested in emergency. दोनों का आपको सैंपल भेजना है। So this is like we call CBC sample. This is called thyroid function test, TFT. TFT sample. अब मुझे बताओ, तो आंसर बोथ आर करेक्ट, ए एंड सी, दोनों करेक्ट है। तो बिकॉज दोनों इमरजेंसी रूम में नहीं होते, बट समटाइम इन एग्जाम आल्सो यू विल सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर आपको लगेगा दोनों करेक्ट है एंड यू आर कॉन्फिडेंट। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लगेगा? चूज द सिंगल बेस्ट आंसर। व्हाट यू विल चूज? बताओ। अब मुझे बताओ, विच कैन कॉज, कैन अनीमिया, अनीमिया के पेशेंट को घबराहट होती है, पाल्पिटेशन होता है, ट्रेमर, स्वेटिंग, इम्पेंडिंग डूम तो नहीं होता? Am I clear? Anemia patient can have घबराहट, palpitation, tremors is also very rare, sweating is also very rare. So घबराहट, palpitation you can see in thyroid patient also. Means अगर किसी का hyperthyroidism है उसमें घबराहट हो सकती है, yes. Palpitation, yes. Tremors, yes. Sweating, yes. Impending doom, also yes. Am I clear? So answer both are correct, but T3 T4 means अगर hyperthyroidism है तो ऐसे symptom होंगे, बट अनीमिया में सारे ऐसे सिम्टम नहीं होंगे। सो आंसर विल बी हीमोग्लोबिन। समझ आया क्वेश्चन? है इज क्लियर? एक्चुअली वी बो डोंट टेस्ट बोथ द टेस्ट इन इमरजेंसी रूम। सिंपल। ओके, ट्राई टू आंसर दिस। यू कैन सी दीज आर वेजिटेशन अलोंग लाइन ऑफ क्लोजर। तो लाइन ऑफ क्लोजर वेयर यू विल सी रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस। बताओ। बताओ क्या होगा आंसर? अब देखो, टैपिंग whenever you are tapping on knee jerk, so knee jerk means it is, there are two method, एक होता है sitting method। sitting means patient is sitting, legs are hanging down and we are tapping on the patella, you can see this pendular movement, clear? दूसरा है lying method। so pendular movement के अलावा what else we are checking, what else we are seeing? You will see there is exaggerated reflex, then this will release a contraction in your thigh muscle, तो यहाँ पर contraction होगा। am I clear? और यहाँ पर contraction, here contraction you can see जब ये पैंट ऊपर होगी। समझ आया? यहाँ तो दिख ही नहीं रहा ना कोई कॉन्ट्रैक्शन। देखो डॉक्टर ये कर सही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये बस पैंट ऊपर करके करना है। एम आई क्लियर? समझ आ रही बात? नहीं आ रही? इट शुड बी टिल हियर, बिकॉज हियर वी हैव टू सी द कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा ही नहीं, एंड दैट्स वेरी, बिकॉज बिग मसल है तो वहाँ बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो डॉक्टर इज परफॉर्मिंग दिस रिफ्लेक्स इनकरेक्टली, दिस इज करेक्ट। रूट वैल्यू इज L1 L2 L3, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑलवेज एब्सेंट peripheral neuropathy, ऑलवेज brisk in motor neuron, ये भी करेक्ट है। तो दे आर आस्किंग करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी। देखो वैसे देखो एक बार, this is, there are two method of doing this test. First method is in lying position, second is sitting position। sitting position, lying और sitting, दोनों में आइडियली क्या होता है? यू शुड सी दिस क्लोथ शुड बी अप टू मिड पोर्शन ऑफ थाई, ये यहां तक होना चाहिए, तो दिस शुड बी लिटिल अप।
So they are asking you knee jerk का डॉक्टर इज परफॉर्मिंग दिस करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। रूट वैल्यू इसकी L1 L2 L3 L3 L4 होती है। अब देखो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हमेशा एब्सेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरल डिसीज, अपर मोटर एंड न्यूरल लोअर मोटर। इन अपर मोटर न्यूरल डिसीज इट इज ब्रिस्क, इन लोअर इट इज लो। जरूरी नहीं है कि सब में एब्सेंट हो, जरूरी नहीं है कि सब में ब्रिस्क हो। तो आंसर इज ए। एल एस्पार्जिनस वेयर वी यूज VAPD regime. What is VAPD regime? विंक्रिस्टिन, एस्पाराजिनेस, प्रेडनिसोलोन, डुआनोरोबिसिन। लिख लो फटाफट। विंक्रिस्टिन, एस्पाराजिनेस, प्रेडनिसोलोन, डुआनोरोबिसिन। ओके, लेट अस रिवाइज ऑल दिस। CML में क्या यूज करते हैं? इमैटिनिब, पोनाटिनिब, दासाटिनिब, निलोटिनिब, ऑल द टिनिब। AML में क्या यूज करते हैं? एट्रा और कुछ आर्सेनिक, arsenic trioxide. In CLL, what we use? And in ALL, what we use? VAPD regime. VAPD regime. Okay, for hypercalcemia, what should be the next step? Hypercalcemia सबसे पहले क्या दोगे? IV fluid. First thing is NS. NS के बाद नहीं हुआ, then next thing, bisphosphonates. Bisphosphonates we will give in selected patient, like those who are above 60, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। अब कोई यंग पेशेंट है उसको दोगे? नो। सेकंड इज फिरोसेमाइड, फिरोसेमाइड। ओके, लेट्स सी। अगर ओल्ड पेशेंट होगा, देन वी नीड टू ऐड bisphosphonates एंड कैल्सिटोनिन। तो लेट्स सी द ऑप्शन। सबसे पहले क्या दोगे? थायराइड दोगे? थायराइड विद रिटेन कैल्शियम, इट कैन कॉज इवन मोर। थायराइड नहीं देते। स्टीरॉइड कब देते? कब? स्टीरॉइड you will use whenever patient is having hypercalcemia due to malignancy or hypercalcemia due to some autoimmune disease like sarcoidosis. अब मुझे बताओ, which cancer will cause hypercalcemia? पोर्ट सेल नहीं कराता, स्क्वेमस सेल कराता है। PTHRP निकलता है, स्क्वेमस सेल लंग कैंसर, स्क्वेमस सेल लंग कैंसर। क्लियर? ओके, पोस्ट TB ब्रोंकिएक्टेसिस, बताओ क्या मिलेगा? क्रैकल्स हियर्ड ऑन, क्रैकल्स मींस दीज आर क्रेपिटेशन। इंस्पिरेशन में क्रैकल्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पेशेंट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड accumulation. It could be cardiogenic or non-cardiogenic pulmonary edema. नॉर्मल ब्रीथिंग को हम बोलते हैं वेसिकुलर ब्रीथिंग। इफ ब्रीथिंग इज बिकमिंग ट्यूबुलर, इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। बेसिलर क्रैकल्स, अगर लोअर एस्पेक्ट में क्रैकल्स है, इट मीन्स पेशेंट इज हैविंग फ्लूइड इन द लोअर पार्ट ऑफ लंग्स। Either it could be a localized collection of fluid or it could be, I can say, hydrothorax. So post TB bronchiectasis, you will see mixed crackles. Okay, next question is simple. बताओ, pH is, PaCO2 is, कैसा PaCO2? नॉर्मल है। PaCO2 नॉर्मल है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी तो आंसर होगा ही नहीं। मैंने एक और तरीका बताया था। PaCO2 is 35 and 35 is close to, तो डायरेक्शन कैसे हो गई? सेम। सेम मीन्स मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक, पीएच कम है तो एसिडोसिस। सिंपल। समझ आया नहीं आया? देखो, दो तरीके होते हैं, एक तो ये वाला बताया था मैंने, दूसरा इफ इफ
PaCO2 is normal. It means it is not a respiratory disease. It is metabolic. PaCO2 बढ़ेगा तो ही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा. ओके बताओ. हेमोलाइटिक एनीमिया में ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट. हेमोलाइटिक एनीमिया में ऑटोस्प्लेनेक्टोमी होती है. इट इज सीन इन सिकल सेल एनीमिया. एलडीएच बढ़ता है, हेमोलाइसिस होगा तो एलडीएच बाहर आ जाएगा. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. बिलिरुबिन कम होती है. देखो ऑटोस्प्लेनेक्टोमी किसमें होगा? सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया. सो ये दोनों तो ट्रू हैं. हीमोग्लोबिन टूटेगा किसमें? बिलिरुबिन. तो बिलिरुबिन कैसा होगा? बिलिरुबिन विल इंक्रीज. हेप्टोग्लोबिन विल डिक्रीज. यस. तो जस्ट रिमेंबर व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन हेमोलाइटिक एनीमिया. सबसे पहले याद रखना रेटिकुलोसाइट काउंट विल इंक्रीज. देन व्हाट एल्स यू विल सी? बिलिरुबिन will increase, LDH will increase, and haptoglobin will decrease. So these are the findings that we see in hemolytic anemia. So haptoglobin कम होता है, बाकी सब बढ़ रहा है. Okay, moving to next one. बड़ा क्वेश्चन है बट इजी है. जॉन्डिस है. AST is 48, ALT is 51. थोड़े थोड़े बढ़े हुए हैं. GGT is normal, but they have telling you like there is cirrhosis. Cirrhosis है. Anti-HAV negative. Anti-HBS negative, anti-HB negative, anti-HBC, IgG positive. तो ये देखो ये पॉजिटिव है. फर्स्ट पॉजिटिव थिंग. व्हाट इज फर्स्ट पॉजिटिव थिंग? एंटी-HBC IgG. इसका मतलब क्या है? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी. एंटी-HBC ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव को छोड़ दो. फॉरगेट दिस नेगेटिव. तो भी नेगेटिव. HBS एंटीजन नेगेटिव. एंटी-HCV इज पॉजिटिव. ये भी नेगेटिव है. तो अब ये क्या है? तो आई कैन से सुपर इन्फेक्शन में बी और डी होते हैं. यहाँ पर क्या है पेशेंट को? क्रोनिक बी, या तो पास्ट में बी हुआ है क्रोनिक, और आई कैन से रिमोट बी. समझ आया? एंड व्हाट एल्स यू कैन सी? प्लस क्रोनिक सी. देखो या तो पेशेंट को अभी भी क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, या पास्ट में बी हुआ था, और क्रोनिक सी है. समझ आया? डायग्नोसिस क्लियर? ओके, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, फिर से देख लो. anti-HAV means hepatitis A is negative, anti-HBS is negative, anti-HB is negative, anti-HBC IgG is positive. इसका मतलब हेपेटाइटिस सी है. एंड एट भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या है? दिस वन. सॉरी, दिस इज हेपेटाइटिस बी. दिस इज क्रोनिक एंड दिस इज हेपेटाइटिस सी. तो पेशेंट को बी और सी दोनों है. तो आपके पास एक रेयर पेशेंट आया जिसको बी और सी दोनों है. क्या करोगे? बताओ. बी में क्या देते हैं? क्या करोगे अब? इन बी आई टोल्ड यू वी विल गिव अ ड्रग. कौन सा एंटी ड्रग देंगे? टेनोफोविर और एंटिकेविर. राइट. और सी में क्या करेंगे? सी में क्या करेंगे? कौन सा? सोफोस्फोविर प्लस अदर ड्रग्स लाइक वेलापार्टसविर, डेक्लाटेसविर. इंटरफेरॉन्स अब चालू नहीं करते. बायोप्सी की जरूरत नहीं है. अगर सिरोसिस होगा तो भी वी विल नॉट डू बायोप्सी बिकॉज इट इज नॉट अ कैंसर. बायोप्सी नहीं करोगे. देन व्हाट यू विल डू? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट. बताओ क्या करोगे? आरटी पीसीआर फॉर हेपेटाइटिस सी, पीसीआर फॉर एचपीवी डीएनए. बताओ क्या करोगे? पीसीआर फॉर एचपीवी डीएनए करोगे या हेपेटाइटिस सी के लिए करोगे?
अब देखो सी का तो आपको पता चल गया. इन सी आई टोल्ड यू वी हैव टू ट्रीट ऑल पेशेंट. एम आई राइट? लेकिन हेपेटाइटिस बी में वी विल ट्रीट ओनली सिलेक्टिव पेशेंट. राइट? सो वी विल ट्रीट सिलेक्टेड पेशेंट. सिलेक्टेड मीन्स जिनका वायरल लोड ज्यादा होगा. डीएनए कॉपीज आर मोर देन 2000. एम आई क्लियर? तो दे आर गिविंग यू लाइक आपके पास पेशेंट है तो क्या करोगे. तो देखो आइडियली प्रैक्टिस, इफ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में तो मैं दोनों कराऊंगा. इन प्रैक्टिस आई विल डू बोथ. आरटीपीसीआर भी कराऊंगा और एचबीवी डीएनए का क्या कराओगे आप, पीसीआर कराओगे. हेपेटाइटिस सी वायरस का क्या होता है, इसको बोलते हैं एचसीवी आरएनए एंड इट इज कॉल्ड एचबीवी डीएनए. तो आइडियली आई विल डू बोथ, बट अगेन यू हैव टू चूज वन. तो क्या चूज करोगे, आरटीपीसीआर फॉर हेपेटाइटिस सी और एचबीवी डीएनए. एचबीवी डीएनए. समझ आया? बिकॉज हेपेटाइटिस सी तो सबको ट्रीट करना है आपको. यू हैव टू ट्रीट ऑल पेशेंट. अब चाहे आरटीपीसीआर में एक वायरस हो या 1 लाख, यू हैव टू ट्रीट ऑल. बट तो सी का तो ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दोगे. बी का ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करोगे, व्हेन डीएनए कॉपीज आर मोर. क्लियर? तो आंसर अगेन आई कैन से डी इज अ बेटर आंसर देन सी. ओके नेक्स्ट बताओ. अनकॉन्शियस पेशेंट इज वाज brought टू इमरजेंसी रूम, नॉट डन फर्स्ट लाइन. रैंडम ब्लड शुगर करोगे, एक अनकॉन्शियस पेशेंट बेहोश हो रहा है, ब्लड शुगर करोगे. बिकॉज बिकॉज डी के हाइपरोस्मोलर कॉमा एंड इवन हाइपोग्लाइसोमिया, दोनों में पेशेंट को क्या हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. लंबर पंक्चर करोगे इमरजेंसी में. अभी अभी रुक जाओ, उसको आगे सोचते हैं. ईजी, इसको भी आगे सोचते हैं. सीटी स्कैन करेंगे, सीटी तो कराओगे ना. स्ट्रोक का पेशेंट होगा, अनकॉन्शियस हो सकता है, स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज, तो सीटी और शुगर तो करेंगे. नाउ यू आर लेफ्ट विथ ईजी एंड लंबर पंक्चर. इमरजेंसी में क्या नहीं करोगे, नॉट द फर्स्ट लाइन. क्यों? देखो ईजी, ईजी जनरली हम नहीं करते, बट ईजी देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन. अगर पेशेंट बेहोश है और उसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, आईओपी बढ़ा हुआ है, तो लंबर पंक्चर करने से पहले आपको क्या चाहिए, यू नीड अ फंडस रिपोर्ट और फंडस स्कैन. तो पहले आपको फंडस एग्जामिनेशन करना है, और अगर ये नॉर्मल होगा तभी लंबर पंक्चर करोगे. ईजी में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, पेशेंट बेहोश है कर लो. अगर कॉमा होगा देन विच पैटर्न यू विल सी, उसको बोलते हैं बस्ट सप्रेशन पैटर्न. तो ईजी भी कर सकते हैं. तो अगेन लंबर पंक्चर इज नॉट द फर्स्ट लाइन. लंबर पंक्चर से पहले क्या करना है, फंडस एग्जामिनेशन. अगर फंडस में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, देन वी विल नॉट डू दिस. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू आर एंड टीसीपी गाइडलाइंस, following is not a suspect of TB. Confirmed extra pulmonary TB patient with cough of 2 weeks or more. What do you think? ये टीबी है या नहीं है? हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना, एक्स्ट्रा पल्मोनरी दिया है तो खांसी थोड़ी होगी. ये आंसर हो गया. एक्स्ट्रा पल्मोनरी में खांसी नहीं होगी ना, पल्मोनरी में खांसी होगी. इज नॉट अ सस्पेक्ट. लेट्स सी. HIV पॉजिटिव पेशेंट विद कफ ऑफ ड्यूरेशन, इसमें आप टीबी का टेस्टिंग कराओगे? यस. कॉन्टैक्ट ऑफ स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट विद कफ ऑफ ड्यूरेशन मीन्स आपके हस्बैंड को या वाइफ को टीबी, उसकी टेस्टिंग कराओगे? यस. एनी इंडिविजुअल्स हैविंग कफ ऑफ ड्यूरेशन मोर देन 2 weeks और मोर? यस. एक्स्ट्रा पल्मोनरी में कफ इज एब्सेंट. समझ? अगर अगर इसमें मैं ये काट दूं तब ये अलग होता. राइट? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में कफ का कोई रिलेशन नहीं है. पेशेंट विल हैव आइदर lymphadenopathy or spine pain. This is not as per RNTCP guidelines. So RNTCP guideline में सस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं?
Any patient with cough of more than 2 weeks duration. Clear? Any patient with sudden weight loss, drenching night sweat for more than 2 weeks. किसी को रात को पसीने आते हैं, बुखार आता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, 2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है. Any patient who is having cough and is relative and living with the patient of positive TB. मीन्स किसी की फैमिली में कॉन्टैक्ट है, उसको कफ हो रही है, तो आप उसको टेस्ट कराओगे. एंड रिमेंबर, एनी HIV पेशेंट with or without symptom, even without symptom, that's a suspect. So every HIV is a classical suspect of TB. Okay, so they are giving you ataxia है, ipsilateral meiosis, contralateral facial paralysis, contralateral hemiplegia, vitals are stable. So more likely it is involvement of pica. It is posterior inferior cerebral artery pica involvement. इंटेस्टाइनल माल अब्जॉर्प्शन के लिए क्या टेस्ट करोगे? बताओ. अगेन, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी बायोप्सी. तो एक लाइन लिखो. ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है पैथो मेडिसिन में. स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी, स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. Small intestinal biopsy, it is gold standard test for any malabsorption syndrome. It is gold standard test for any malabsorption syndrome. अब इसको देखो. हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट किसके लिए करते हैं? वो तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है. हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट यू कैन डू sometime for protein malabsorption. Fecal stool estimation. Stool estimation means कितना stool fat है. This is for steatorrhea. ये किसी भी steatorrhea में आएगा. पामा टेस्ट को अब यूज नहीं करते. फॉर कार्बोहाइड्रेट माल अब्जॉर्प्शन वी यूज डीजाइलोस्ट. अगेन इस क्वेश्चन में मैं बोलूंगा चारों आंसर गलत है, बट वी हैव टू चूज वन. इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन अगर ऐसे होता, मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट माल अब्जॉर्प्शन, देन आंसर विल बी डीजाइलोस टेस्ट. और इस क्वेश्चन में अगर बायोप्सी आंसर में होता तो आंसर विल बी बायोप्सी. ओके, नाउ लेट नेक्स्ट वन. Iron deficiency anemia, before giving iron therapy, following is to be taken. Before starting parenteral iron therapy, a testing dose of diluted drug is to be given for hypersensitivity. True or false? True. आयरन देने से पहले आइडियली आपको एक थोड़ा सा आयरन पहले देना चाहिए. ये तो ट्रू है. In case of poor compliance, patient is to be directly started in parenteral therapy. Suppose you are giving oral iron therapy. 1 महीने बाद पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको सीधा आईवी दे दोगे. फाइंड हिम द रीजन, मीन्स आस्क हिम, मे बी वो क्या ले रहा है. वो चाय पी रहा है ज्यादा, अल्कलाइन फूड ले रहा है, पीपीआई ले रहा है, राइट. और ही इज टेकिंग टैबलेट विथ मील. आयरन की गोली खाई फिर खाना खा ली, या खाना खाने के बाद गोली खा ली. आई टोल्ड यू देयर शुड बी गैप बिटवीन आयरन सप्लीमेंट एंड मील. मील, मोस्ट फूड आर like they will inhibit iron absorption. So this is a false statement. Therapy should be stopped as soon as hemoglobin normalized. True or false? Why? स्टोरेज के लिए आपको 500 to 1000 mg ज्यादा देना होता है. So we have to continue. In females we have to give more because female have menstrual cycle. तो आपको हीमोग्लोबिन नॉर्मल होने के बाद भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है. Response of treatment is better for parental iron compared to oral iron therapy. बताओ. दोनों का बराबर है. It will all depend on your lifestyle. Oral iron का absorption affect क्यों हो रहा है? Because of your diet. So answer will be, they are asking you true statement, it will be A. Okay, easy one now. Non-alcoholic patient present to you with prolonged fever, not responding to usual antibiotics.
right? There was history of associated cough and mucopurulent expectoration with varied with posture. मतलब abscess बन गया, X-ray is given, then you can see what drugs. So understand this thing. Most abscess they are due to either anaerobic bacteria or they are due to mixed flora. तो या तो हम इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दें या फिर क्या दोगे, एम्फोटेरसिन भी दोगे, नो, जेमसिटाबिन पैंक्रियाटिक कैंसर में देते हैं। अब देखो क्वेश्चन इजी है, ऑप्शन बहुत इजी है, बिकॉज बाकी ऑप्शन में कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं एक्सेप्ट वन एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन। So if we suspect lung abscess, then we add clindamycin. Okay. जॉगरन सिंड्रोम में क्या नहीं होता? ओके, एक लाइन और लिख दो, जस्ट राइट डाउन, एक लाइन लिख लो, जस्ट राइट डाउन वन लाइन। क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन is most potent antibiotics. Clindamycin is most potent antibiotic which can cause pseudomembranous colitis. Pseudomembranous colitis, most potent. Okay. Following are seen in a patient of Sjogren syndrome except phosphate secretion कम होता है, increase IgA in secretion। अब इसको देखो, सलाइवा कम आ रहा है लेकिन जितना आएगा उसमें आप देखोगे IgA will be more। That is correct again। Increase sodium secretion, again sodium will also increase। So what is not seen? Salivary flow rate 10 से कम नहीं होता। 10 से कम कब होता है? Whenever there is a mucosal fibrosis। So basically Sjogren syndrome में टीयर कम हो जाते हैं, राइट? अब इसको एक टेस्ट होता है, इसको what we call this iontophoresis। What is iontophoresis? You will stimulate your parotid gland and then we will check the salivary rate। So iontophoresis के बाद generally that is more than 10, 10 से ऊपर आ जाता है। ओके, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, just write down here, this is first one is absence epilepsy। अब बताओ मिसमैच क्या है? अब देखो इधर, लैमोट्रिजिन, लैमोट्रिजिन की खासियत क्या होती है? इट इज फर्स्ट लाइन इन ऑल एपिलेप्सी। तो जस्ट रिमेंबर, इस लाइन को याद रखना, हर एपिलेप्सी में लैमोट्रिजिन कैसी होती है? फर्स्ट लाइन ड्रग। डन? लैमोट्रिजिन इज फर्स्ट लाइन इन एनी एपिलेप्सी। क्लियर? नाउ कमिंग टू, देखो पार्शियल सीजर में एक्चुअल फर्स्ट लाइन इज कार्माजेपिन, देन वी कैन आल्सो यूज लैमोट्रिजिन, वालप्रोइट, तो ये तो करेक्ट है। जीटीसीएस में क्या दोगे? वालप्रोइट, लैमोट्रिजिन, तो ये भी करेक्ट है। मायोक्लोनिक में क्या देंगे? वालप्रोइट, लैमोट्रिजिन, ये भी करेक्ट है। एब्सेंस में फर्स्ट लाइन क्या होगा? फर्स्ट लाइन होगा ये, तो ये इधर होना चाहिए। तो इन एब्सेंस इधर फर्स्ट लाइन विल बी valproate, ethosuximide and lamotrigine, and carbamazepine is second line। समझ आया? तो नैप्सन सीजर फर्स्ट लाइन कौन कौन से होंगे? valproate, ethosuximide and lamotrigine। lamotrigine का साइड इफेक्ट बताओ। इट कैन कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। सो आंसर विल बी ए। ओके, सेरिबेलर लीजन प्रोड्यूस ऑल एक्सेप्ट, सेरिबेलर लीजन में निस्टैगमस होता है, होता है। देन पास पॉइंटिंग, याद आ रहा है? पास पॉइंटिंग होती है, होती है। गेट कैसा होता है? ड्रंकन गेट और ब्रॉड बेस गेट, उसी को बोलते हैं टैक्सिक गेट। रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं? नहीं होते। कैसे ट्रेमर होता है? इंटेंशनल ट्रेमर,
Resting tremors are seen in Parkinson. Here you will see intentional tremor. अब इसको देखो, कंटिन्यूस मर्मर मींस सिस्टोल डायस्टोल हर कंटिन्यूसली आपको मर्मर आ रहा है. तो सपोज अगर आर्टरी और वेन के बीच में फिस्टुला है, like we do in dialysis patient, तो whenever you palpate this patient always you will see a motor running, एक हमेशा एक साउंड आता रहेगा. So in any arteriovenous fistula you will see continuous murmur. पीडीए में भी कैसा होता है कंटिन्यूस मर्मर? एओर्टिक रिगर्गिटेशन विथ वीएसडी, इसमें कैसा मर्मर होगा? यू विल सी मर्मर ओनली इन डायस्टोल. तो कंटिन्यूस मर्मर कब होगा? इन एनी फिस्टुला एंड इन पीडीए पेशेंट. ओके, देन दिस वन इज इजी क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर. क्या है डायग्नोस, क्या है? यंग फीमेल विथ कंप्लेंट ऑफ बोन पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प, एबनॉर्मल बिहेवियर. तो क्या बोलते हैं इसको? ग्रोन्स, बोन्स, साइकोटिक मोन्स. साइकोटिक सिम्टम, colic abdominal pain. So this is a patient of hyperparathyroidism. So how will confirm with sestamebe scan? Sestamebe scan. It is a scan that we do for hyperparathyroidism. एक लाइन और लिख देना. और कुछ टेस्ट कराते हैं hyperparathyroidism के लिए? What else test we do? Any other test? Is it primary or is it secondary? Write down most common cause of. Write down most common cause of primary hyperparathyroidism. Most common cause of primary hyperparathyroidism is parathyroid hyperplasia. Most common cause of primary hyperparathyroidism is parathyroid hyperplasia. Parathyroid hyperplasia. And most common cause of secondary. Most common cause of secondary. क्या होगा secondary? CKD. Most common cause of secondary hyperparathyroidism is CKD. ओके, देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है अभी एग्जाम में. दिस कैन बी आस्क्ड. 1,3 बीटा डी ग्लूकोन एसे किसके लिए करते हैं? It is done for many systemic fungus. Which? एस्परजिलस के लिए करते हैं, करते हैं. कैंडिडियासिस के लिए करते हैं. अब इसको ध्यान से, इसको देखो ऐसे याद रखो. वी डू दिस फॉर ऑल सिस्टेमिक फंगस एक्सेप्ट सीएनएस फंगस. सीएनएस में कौन सा है? क्रिप्टोकोक्का. तो जस्ट आई एम राइटिंग सिंपल लाइन. इट इज डन फॉर ऑल नॉन सीएनएस सिस्टेमिक माइकोसिस. समझ आई बात? ब्रेन वाले फंगस के लिए नहीं करेंगे, बाकी सब के लिए क्या करते हैं? 1,3,5 बीटा डी ग्लूकोन एसे. लास्ट वन, नॉट अ फीचर ऑफ माइस्थेनिया. टोसिस होती है. रिफ्लेक्स कैसे होते हैं? नॉर्मल होते हैं. फटीग होता है. तो रिमेंबर DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, दे आर नॉर्मल. They are always normal in myasthenia gravis. They are always normal in myasthenia gravis. Now try to understand. Now you should know paper is in few days. कितने दिन बचे? 10 दिन बचे. So understand this thing. Now it's time to revise your notes. तो कैसे रिवाइज करना है? कुछ नई चीज नहीं पढ़नी. नथिंग न्यू. जो हो गया उसको सेटिस्फाइड हो जाओ. जो टॉपिक छूट गया अभी छूट गया उसको. सपोज किडनी छूट गया मेडिसिन में, बोल भूल जाओ अब. और भी तो छूटा होगा कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में. अब उसको भूल जाओ, फॉरगेट इट. जो हो गया हो गया. नो न्यू. नाउ व्हेन वी नीड टू रिवाइज ओल्ड थिंग्स, तो there's something called preview method. Preview method means suppose मुझे मेडिसिन सर्जरी की कॉपी पलटनी, दे आर बिग.
अगर पूरा पूरा पढ़ूंगा तो रिवीजन नहीं होगा। तो जस्ट स्क्रॉल द पेजेस वंस, एक बार स्क्रॉल कर लो, एक बार नजर से उसको निकाल दो। और जो जो टीचर क्यू लगवाते हैं, सब लोग नहीं लगवाते बट मोस्ट ऑफ इफ यू सी जो क्यू लगाते हैं या बताते रहते हैं क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चे अपने आप लगा लेते हैं। एक दिन टाइम निकाल के फोकस ऑन दोस क्यूज। कुछ लोग ई क्यू लिखते हैं, सम पीपल दे राइट पी वाई क्यू, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, स्टार, राइट? These are the things which you need to revise. Fourth thing is, most of you are having Q bank, तो उसको ऐसे चलना है 2024 से 20। एक बार उल्टा चलना है। और वेरी कॉमन मिस्टेक कि नीट पीजी कर लिया, एफएमजी कर लिया, आईएनआईसीटी छोड़ दिया, वो भी छोड़ना नहीं है। आईएनआईसीटी में 200 क्वेश्चन आते हैं। these 200 क्वेश्चन में से डिफिकल्ट कितने होते हैं? 60-70। बाकी सब क्या होते हैं? इजी। वो इजी आपके एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। तो व्हेन यू सॉल्व आईएनआईसीटी पेपर, हो सकता है आप मेडिसिन के 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20 के 20 डिफिकल्ट नहीं है वो, 10 डिफिकल्ट है, 10 इजी भी हैं। तो इजी वाले कहाँ रिपीट होते हैं? एफएमजी। तो आईएनआईसीटी को एक लर्निंग टूल मानो। तो एक बार उल्टा चलना है, 24, 23, 19, 24, 23, 22, 21, 20, और 24 को 2 बार देख लो। जो 24 में आया है, बिकॉज करंट एग्जामिनर पैटर्न विल बी 24। है क्लियर? तो मैं कुछ देख के आया हूँ, तो मैं कुछ टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, तो उनको फटाफट लिख दो जो अभी पैटर्न चल रहा है। Just write down names of few topics which they are asking, which are important, and which they ask in exam based on 24 trend. First topic, write down GIST, gastrointestinal stromal tumor, CSF finding, जो मैंने टेबल बनवाई थी लंबर पंक्चर की, उस पर एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार। MI का ECG मीन्स वॉल्व लोकलाइजेशन, याद आ रहा है? साल, सेप्टल, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर। निमोनिया ट्रीटमेंट, निमोनिया ट्रीटमेंट। अनीमिया क्लासिफिकेशन, माइक्रोसाइटिक कौन सा है, नॉर्मोसाइटिक, उसका क्लासिफिकेशन। वर्निकी एंसेफेलोपैथी, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। वर्निकी एंसेफेलोपैथी। एमआई मार्कर्स, एमआई मार्कर्स। एब्सेंट सीजर्स, एब्सेंट सीजर्स। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। लंबर पंक्चर हेडेक। मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस। हार्ट फेलियर ड्रग्स, हार्ट फेलियर ड्रग्स। OH सारे पढ़ने, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, बट आपका फोकस होना चाहिए या तो सल्फोनिल यूरिएस पे या फिर SGLT2 इनहिबिटर। देखो मेटफॉर्मिन के जितने क्वेश्चन बनते थे वो बन चुके हैं। ऑल द क्वेश्चन ऑफ मेटफॉर्मिन हैव बीन आस्क्ड, so now they will ask you either glimepiride, glipizide, or SGLT2 inhibitor, OH. Then they are asking you question on alcohol, ABG analysis, simple question आता है ABG पे एक क्वेश्चन ऑलवेज दे आर आस्किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट राइट डाउन। अक्लेशिया भी 2-3 बार से रिपीट हो रहा है, अक्लेशिया कार्डिया।
GCS, ग्लास ग्लो कॉमा स्केल, ग्लास ग्लो कॉमा स्केल, ग्लास ग्लो कॉमा स्केल, कार्टा गेनर सिंड्रोम, कार्टा गेनर सिंड्रोम, कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट। देखो बार बार क्वेश्चन टैकेरिथमियास पे आ चुका है, तो इस बार आई थिंक दे विल आस्क यू ईसीजी ऑफ एवी ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक। सेरिबेलर डैमेज, सेरिबेलर डैमेज के सारे साइंस पता होने चाहिए आपको। सेरिबेलर डैमेज, कुशिंग्स, कुशिंग्स, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सेकेंडरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक, कप 65 स्कोर, कप 65 स्कोर, पल्सस पैराडॉक्सस कुस्मॉल साइन, पल्सस पैराडॉक्सस एंड कुस्मॉल साइन, पल्सस पैराडॉक्सस एंड कुस्मॉल साइन, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जेवीपी, ईच एंड एवरी लाइन, जेवीपी, ABCD2 स्कोर, ABCD2 स्कोर, सब अरेक्नोइड हेमोरेज, सब अरेक्नोइड हेमोरेज, हंटिंगटन डिसीज, हंटिंगटन डिसीज, हंटिंगटन डिसीज, एमिलोइडोसिस, एमिलोइडोसिस देखना पैथो में लिखा होगा, शायद मैंने भी लिखाया था। एमिलोइडोसिस में भी लिख देना A beta 2M, ए बीटा इज सीन वेयर, इन ब्रेन, A beta 2M कहाँ मिलेगा, किडनी में, एमिलोइडोसिस, GBS, GBS। अब देखो वैगनर्स पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है अभी, जैसे लास्ट 2 साल पहले कावासाकी पे आया था, तो दे विल आस्क यू आइदर वैगनर्स और हैनॉक्स शॉलन परप्यूरा, वैगनर्स और हैनॉक्स शॉलन परप्यूरा, मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, PSGN, PSGN। फिर जो मैंने अभी आज बताया था, COPD अस्थमा को डिफरेंशिएट करने वाला, FEV1 पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, राइट डाउन, FEV1 पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर मोर देन 12% और 200 ml, 12% और 200 ml। डुक्स क्राइटेरिया, डुक्स क्राइटेरिया, ये भी हमने आज पढ़ा था। सिलियाक्स प्रू, सिलियाक्स प्रू, सिलियाक्स प्रू, रोमैटिक फीवर, उसका भी क्या, जोन्स क्राइटेरिया, DK, DK, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, diabetic ketoacidosis. So these are the FMG specific topic which are coming from last 3 years. So इनको एक बार अच्छे से देखना है और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस पढ़ाई करनी है, अपना 8-10 घंटे पढ़ना है और ट्राई टू चेंज योर मॉर्निंग रूटीन।
ठंड ज्यादा हो रही है तो 6 बजे 5 बजे उठने का मत सोचो, लेकिन 8 9 बजे तक उठ जाओ। ये नहीं कि 12 बजे 2 बजे तक पड़े हुए हैं। तो ट्राई टू वेकअप बाय 8 o'clock 9 o'clock, और जितना हो सके 10 11 12 के बाद सो जाओ, मैक्सिमम 12 o'clock। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करते रहनी। ऑल द बेस्ट। हाँ, तुक्के का देखो क्या है। सबसे पहले वट एवर यू सी, वट एवर यू सी, वट कम्स इन योर माइंड, तो पहले तो कोशिश करो कि एलिमिनेट करना है। दो ऑप्शन